Hi everyone, once again welcome to all of you. Today I am going to start 9.1 exercise, the part of height and distance. And before this lecture and video, some questions already have done. And question number 6 and question number 4 very simple. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. So simply height of the tower, suppose h and base is 30 degree is given, 30 meter is given, and tan 130 means 1 upon root 3. So कंडीशन सिंपली क्या बनेगी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? टेक टावर AB is tower and base is 30 meter and angle is making 30 degree. तो ABC apply the ratio tan 30 degree is equal to tower height upon base, but tan 30 means 1 upon root 3. So AB upon 30 by the cross multiplication, AB is equal to 30 upon root 3. So this is डेसिलाइज करना पड़ेगा 30 root 3 upon root 3 means 3 1 the 3 3 10 the 30, only 10 root 3 meter. Only simply this the height of the tower is 10 root 3. So question number 4 only calculation based question, very simple. And now question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. 30 meter tall building and 1.5 meter tall boy. तो boy की जो height है वो utilize हो जाएगी 30 मीटर बिल्डिंग में. And the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. Increases. तो इंक्रीजेस का मतलब यहाँ क्या निकल रहा है कि अपनी आई से जब वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो 30 डिग्री जनरेट कर रहा है, बट एंगल फिर इंक्रीज हुआ 60 डिग्री व्हेन ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग. जब बिल्डिंग की तरफ वो जा रहा था तो एक ऐसी पोजीशन में पहुंचा जहां पर उसका एंगल 60 डिग्री हो गया. उससे पहले एक पॉइंट पे 30 डिग्री था. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग. यानी अब हमको बेस के रेस्पेक्ट में वो डिस्टेंस निकालना है कि जहाँ उसकी इनिशियल पोजीशन थी जब 30 डिग्री एंगल बन रहा था, आफ्टर फ्यू मिनट्स आफ्टर फ्यू डिस्टेंस 60 डिग्री एंगल जनरेट हुआ, तो वो डिस्टेंस फाइंड करनी है. ओके हाँ, 30 टू 60 डिग्री के बीच का. तो एंगल नहीं फाइंड करें, डिस्टेंस फाइंड करें. क्वेश्चन नंबर 6 solution. .5 meter tall boy and in opposite direction building and tower. Building है ना? ठीक. So this is the base and this is the top of and head of the boy. ये हुआ. जब इस लाइन को हम ज्वाइन करेंगे तो बिल्डिंग के फॉर्म से ज्वाइन करेंगे. सो 1.5 मीटर हाइट इज गिवन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेमिंग द फिगर ए बी सी डी एंड लास्ट पॉइंट सिंपली ई. क्वेश्चन सेज कि जब 1.5 मीटर टॉल बॉय अपने आई से बिल्डिंग के टॉप को कांटेक्ट कर रहा था तब उसका एंगल क्या जनरेट हो रहा था? 30 डिग्री. बट इस पॉइंट से जब वो बिल्डिंग के टूवर्ड्स बिल्डिंग के डायरेक्शन की तरफ चला तो एक ऐसे पोजीशन पे उसका एंगल कितना जनरेट हो गया? 60 डिग्री जनरेट हो गया. तो 1.5 मीटर AB इज इक्वल टू 1.5 मीटर DC. एग्री? Yes sir. एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज गिवन. Yes sir. व्हाट? 30 मीटर ना. गुड. सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 30 meter. When total height is 30 meter and small segment 1.5, so remaining height of the building what? 30 minus 1.5 means 28.5 meter.
And now statement is fulfilled and BC is equal to AD. BC is equal to AD and AB is equal to DC is equal to 1.5 meter. So according to question and according to figure, write the few statement. That is, AB is a tall boy and EC is the height of the building, and from A point making an angle 30 degree, but when boy is towards the building, so this point A, B, C, D, E and lastly F. So total height of the building is 30 meter is given, okay. And after that, take in triangle AED and FED also, ठीक. तो फर्स्टली हम AED लेते हैं, इन ट्राइंगल AED. जब AED ट्राइंगल फेस करेंगे तो कंसीडर एंगल क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस व्हाट, 28.5. तो 28.5 को क्या 57/2 मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, अपॉन बेस. टोटल बेस इसमें काउंट कितना हो रहा है, AD, ओके. tan 30 डिग्री 1/√3 इज इक्वल टू 57/2 AD. By the cross multiplication, 2AD is equal to 57√3. Then AD is equal to 57√3 by 2. Save this answer. Okay. Save this equation. And now in triangle EFD, consider an angle tan 60 degree. Again perpendicular 57/2 and base is only FD. Tan 60 is √3, 57/2 FD. By the cross multiplication, 2√3 FD is equal to 57. But lastly FD is equal to 57/2√3. So again √3 डिनोमिनेटर में आ गया, इसे हमें रेशनलाइज करना चाहिए. तो √3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ओके. Then FD is equal to 57√3 upon, in the denominator √3 multiply by 3, so 2 into 3. जल्दी मल्टीप्लाई मत किया करिए, इसको स्मॉल फॉर्म में रखा करिए कैंसिल करने के लिए. तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27. So FD is 19√3 upon 2. Equation number, sorry, condition number second. And now FD is equal to this and AD is equal to this. So हमें निकालना क्या है, AF. वो बंदा बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया जब उसका एंगल 60 डिग्री बन जाएगा. तो उस कंडीशन पे AD टोटल लेंथ हमें फाइंड हो चुकी है, FD राइट नाउ अभी फाइंड हो चुकी है. तो रिमेनिंग एंगल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो डिस्टेंस AF is equal to total distance AD minus given distance FD. तो रिमेनिंग डिस्टेंस AF फाइंड हो जाएगा आपका. AD is what, 57√3/2 minus FD 19√3 by 2. सिंपली 1/2 कॉमन ले लें, 1/2 सिंपली कॉमन लेते हैं. तो 57√3 minus 19√3. 57 minus 19 means what, 17 minus 9 means 8, 4 minus 1 means 3√3.
ठीक। तो 57 मैंगो माइनस 19 मैंगो कितना बचेगा 38 मैंगो, ठीक। टोटल अपॉन 2, 2 1 2, 2 9 अगेन 18। सो आंसर 19√3 व्हाट 19√3 किसको बिलोंग कर रहा है AF को बिलोंग कर रहा है। तो स्टेटमेंट क्या होगा देयरफॉर ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19√3 मीटर, तब उसका एंगल 60 डिग्री जनरेट हो जाएगा। अंडरस्टूड? So please note down fast. Girls, please don't murmuring. And next, question number 7 very simple, and question number 8. Question number 8 is important and few techniques in their question. A statue 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal. What do you mean by pedestal? सर एक बड़ा सा रहता है जिसमें सिंपली जिसमें किसी स्टैच्यू को पुतले को हम लोग खड़ा करते हैं, जस्ट लाइक एंटी चैम्बर चबूतरा, ठीक, जिसके ऊपर स्टैंड हो जाता है पेडेस्टल। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल ओनली। ओके, सो this is pedestal height and pedestal के ठीक ऊपर क्या है स्टैच्यू, और उसके बॉटम से एक पॉइंट लिया गया, उसके बॉटम से एक पॉइंट लिया गया, आई थिंक कॉमन पॉइंट है। तो 1.6 मीटर टॉल, 1.6 मीटर टॉल, ये क्या है हाइट ऑफ स्टैच्यू, ठीक। एंड on the top of the pedestal from a point on the ground the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point from the यानी एक ऐसा पॉइंट लिया गया उसके बेस से, उसके बेस से जब हम लोग स्टैच्यू के टॉप को देख रहे हैं तो कितना डिग्री का एंगल जनरेट कर रहा है 60 डिग्री। फिर सेम पॉइंट पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि उसी पॉइंट से अगर हम लोग पेडेस्टल के टॉप, पेडेस्टल के टॉप को जनरेट करें तो एंगल क्या बन रहा है 45 डिग्री। तो एक ये कंडीशन बन गई, तो ये एंगल क्या बना 45 डिग्री और ये क्या एंगल बना 60 डिग्री। तो अब नेमिंग किया जाए A B C D सिंपली। ओके, DC is height of statue, CB is height of pedestal and A is the common point, A is the common point जहाँ से आपका इस ट्रायंगल के लिए 45 डिग्री और होल ट्रायंगल के लिए 60 डिग्री एंगल जनरेट करेगा, ठीक। तो राइट द स्टेटमेंट सिंपली कर लेंगे आप लोग। ओके, अब उस बिहाफ पे अगर क्वेश्चन किया जाए तो फर्स्टली इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल CAB, 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 तो CAB में कौन सा एंगल कवर अप हो रहा है 45 डिग्री। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस BC height of pedestal and AB is base, but tan 45 degree is 1 is equal to BC upon AB means BC is equal to AB. Save this condition. Okay, and now again in right angle triangle DAB, जो आपको अप्लाई करना BAD। सो BAD में एंगल क्या कंसीडर हो रहा है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइट, हाइट मींस टोटल हाइट इज DC plus DC upon AB and tan 60 √3, DC is given, height of statue 1.6,
एंड BC इज व्हाट? हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो हम BC को बेस के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करें, बेस को पेडेस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमको BC फाइंड करना है। तो BC सेव करिए, बट अपॉन AB इज इक्वल टू व्हाट? तो हम इसको पुट करें, तो AB की जगह हमें पुट करना पड़ेगा BC। तो BC कॉमन हो गया, तो फाइनली ये BC हमारी क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ पेडेस्टल हो जाएगी, जिसमें हमने AB को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया या सब्स्टिट्यूट कर दिया। एंड नाउ बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1.6 प्लस BC इज इक्वल टू √3 BC। अगेन BC ट्रांसफर कर दें, सिंपली इसको 1.6 इज इक्वल टू BC √3, इस BC को ट्रांसफर करेंगे माइनस BC, सो 1.6 इज इक्वल टू BC इज कॉमन इन द रिमेनिंग √3 minus 1, अंडरस्टूड? देन BC इज इक्वल टू 1.6 total upon √3 minus 1. So in the denominator here √3 minus 1. So conjugate होना चाहिए √3 plus 1, √3 plus 1. So 1.6 in a bracket √3 plus 1 total upon √3 3 plus minus minus 1 ones are 1. So 1.6 √3 plus 1, 3 minus 1 means 2. 2 ones are 2. 1.6 divided by 0.8. So 0.8 in a bracket √3 plus 1. This is the height of pedestal. Okay. So therefore height of the pedestal is 0.8 √3 plus 1 meter. Any problem? Understood? This is 4 marks question. But in the 2020 examination, from whole trigonometry carry 12 marks. 12 marks, okay. So near about 4 to 5 allotted to height and distance, and 2 marks allotted to ratio, and 1 marks allotted complementary angles, and remaining numbers 4-5 numbers allotted for identities. But 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री से रिलेटेड एंगल्स को पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। Rest of question attempt yourself. Okay, firstly, from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Determine height of the cable tower. Cable tower. Okay. तो यहाँ पर फाइनली क्या है कि एक हाइट है, सॉरी एक बिल्डिंग, बट बिल्डिंग से अबव केबल टावर की हाइट है। ये इसका मतलब हुआ। हाँ, तो बस बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर सिंपली। तो बिल्डिंग के टॉप से आप किसी केबल टावर के टॉप को देख रहे हो, तो छोटा क्या हुआ? बिल्डिंग हुई ना। ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को केयरफुली होकर समझना पड़ता है, इसलिए उस क्वेश्चंस को एटलीस्ट 2 से 3 टाइम बात किया करो, उससे रीड किया करो, अपने आप क्लियर होता है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग का मतलब ये 7 मीटर हमने कर लिया। ठीक, इसका टॉप यहाँ है, बेस यहाँ है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, जब एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप की बात करेगा तो ये कंफर्म है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर ही जाएगा। ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, बोल दिया ना, तो केबल टावर इसके पैरेलल आप ले जाइए, जो बिल्डिंग से क्या होना चाहिए? ऊंचा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो अब इस बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप को आप एलिवेट किए, तो कौन सा एंगल जनरेट हुआ? 60 डिग्री। 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी उसी पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन कहां से होगा?
डिप्रेशन तो नीचे की तरफ जाएगा ना, अब यहाँ से डिप्रेशन तो देखेंगे नहीं, तो यानी इसी पॉइंट का डिप्रेशन देखने को बोल रहा है। ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, यानी केबल टावर का फुट कहाँ है? तो जब ये एंगल हम इसको 45 डिग्री कन्वर्ट करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे ये एंगल क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, डिटरमाइन हाइट ऑफ द टावर। तो अब इसकी नेमिंग की जाए, ए बी सी डी ई। ओके, सो ए बी इज अ बिल्डिंग, ए बी इज इक्वल टू डी सी and BC is equal to sure ठीक, and height of the cable tower is what? EC। ओके, और कुछ तो दिया नहीं है, श्योर नहीं दिया, तो फाइनली हमको अगर ED मिल जाए तो हम ED की वैल्यू को DC के साथ ऐड करके टोटल हाइट ऑफ केबल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली अगेन अपना स्टेटमेंट दीजिए आप। सर बेस तो दोनों का सेम है, बेस निकल जाएगा। ठीक ठीक, बेस के बिहाफ पे करना पड़ेगा। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल लाइक सिंपली ABC ले लिया जाए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। सो ABC tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लाइक AB अपॉन बेस इज BC। So tan 45 is 1 is equal to AB means 7 and BC means base. By the cross multiply, BC is equal to 7 meter. If BC is equal to 7, then AD is equal to also 7. And now in the triangle EAD, EAD angle is tan 60 is equal to ED. ED is the height of the remaining part of the tower, and upon AD is 7. Again tan 60 root 3 ED unknown and AD is 7. Then ED is equal to 7 root 3. Save your answer. This is normal height, and total height of cable tower is total oblique net height of cable tower EC is equal to AD plus DC. ED is equal to what? And DC? So 7 is common. Root 3 plus 1 meter. Therefore, height of the cable tower is 7 root 3 plus 1 meter. Understood? Any problem? Any doubt? Any query? Okay, last proving question. Question number 16. Prove that the height of the tower is 6 meter. Okay, the angle of elevation of the top of a tower, the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower. Okay, and in the same straight line, and in the same straight line with it are complementary. Then prove that height of the tower is 6 meter. Okay, so what is the condition of complementary angles? If one angle is theta, then other angle will be good. So this is complementary. Question number 16. Solution.
according to board pattern important. The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter. Okay, so first of all take any tower from the 2 points from the base, है ना. तो बेस के रेस्पेक्ट में हमने कोई 2 पॉइंट्स लेना है ना. तो हमने एक पॉइंट्स यहाँ ले लिया, फिर एक पॉइंट्स कहीं यहीं ले लिया. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस. तो बेस के रेस्पेक्ट में पहला होगा 4 मीटर, फिर अगेन बेस से क्या काउंट हो रहा है 9 मीटर. अंडरस्टूड. क्वेश्चन की कंडीशन क्या कह रही थी कि जब उस पॉइंट से हम लोग टावर के टॉप को देखते हैं तो 2 डिफरेंट पॉइंट से देखने पे उसके एंगल क्या हो जा रहे हैं, डिफरेंट एंगल. मींस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विथ इट आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स. कंप्लीमेंट्री एंगल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलॉटेड द नेम P Q R S. SR is the tower and P and Q is the 2 points. Okay, from base of the tower 4 meter allotted Q points, and again from base of tower away 9 meter is allotted to P point. Okay, तो क्वेश्चंस की मीनिंग यहाँ यही कह रही है, सपोज इफ टेक एनी एंगल थीटा देन अदर एंगल विल बी 90 माइनस थीटा. कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो बोला गया उसको लिखा जाएगा, ऊपर स्टेटमेंट दिया जाएगा. सपोज वन एंगल इज थीटा एंड अनदर एंगल विल बी 90 माइनस थीटा बिकॉज क्वेश्चन सेज एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स. सेटिस्फाइड. सर SR हमें 9 दिया हुआ 6 दिया हुआ है. 6 मीटर दिया हुआ है SR. प्रूव करना है ये प्रूफ करना है, तो सपोज नहीं कर सकते. ओके, सो आफ्टर दिस स्टेटमेंट कंप्लीमेंट्री एंगल स्टेटमेंट. ओके, फाइनली सपोज टेक एनी एंगल थीटा देन अदर एंगल विल बी 90 minus theta because question says complementary angles is there. Okay, and now in triangle SQR, it's SQR. So SQR is tan theta is equal to SR upon QR, and SR is the height of tower but QR is given 4 meter. So we can write tan theta is equal to SR by 4, equation number 1. And now another triangle. In triangle SPR tan 90 minus theta is equal to perpendicular SR upon base is PR. SR same but PR is 9, and tan 90 minus theta is equal to what? Tan 90 minus theta is equal to what? Tan 90 minus theta complementary properties na. So tan 90 minus theta is equal to cot theta is equal to SR by 9. This is equation number 2. Okay, so from equation number 1 and 2 tan theta and cot theta is there. ये एंगल कहाँ से हमको सिचुएटेड कर रहा है, बट SR क्या है, हाइट ऑफ द टावर, ये हमें फाइंड करना है. तो tan थीटा cot थीटा को हमें इक्वलाइज करना होगा या एलिमिनेट करना होगा. तो यहाँ पर हम लोग कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं जिससे tan cot या cot tan या tan cot एलिमिनेट हो जाए, जिससे सिर्फ हमारा रिमेनिंग पार्ट बचेगा SR. तो SR इस नंबर की हेल्प से हम उसका प्रूव कर सकते हैं.
नहीं समझे? वन अपॉन समझ गया ना? वन तो क्या अपॉन करें? इंटेंशन है कि हम इसको इक्वलाइज करना चाह रहे हैं, तो दो ऑप्शन भी है, इक्वेशन 1 और 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, tan थीटा जब cot थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो कट के बना जाएगा, क्योंकि cot थीटा को आप 1/tan थीटा लिखोगे। एक और अल्टरनेट है, cot थीटा को ही हम tan थीटा लिख दें, क्या प्रॉब्लम है? cot थीटा को ही हमने क्या लिख दिया, tan थीटा। जब tan थीटा लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम? इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 फ्रेश बोल देते हैं। अब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, तो ऑटोमेटिकली ये इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो थर्ड की मीनिंग में क्या हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू SR/4 इज इक्वल टू 9/SR, श्योर। By the cross multiplication SR square, 9 4s are 36 and SR is equal to under root 36, then SR is equal to plus minus 6, plus minus 6. So plus minus 6, but height of tower cannot be negative. Okay, so mention hence height cannot be negative, so use the positive sign. SR is equal to plus 6 meter. Okay, according to condition result is totally fulfilled, so height of tower is height of tower is 6 meter, hence proved. Okay, so this is the proving part of this questions. Okay children, so in this exercise there are 16 questions and mostly lot of the questions and important and toughest question already solved in front of you, and rest of the questions attempt yourself at your home firstly, then any doubt, any query, then ask to me by app through, by PDF through and by manually classes. Okay, thank you so much children.